السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، نام درمیان میں بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کبھی دو لفظ محبت کے بھی بول دیا کریں۔ ایک روایتی سا شکوہ بے ساختہ ہی اسمارا کی زبان پر ٹھہرا۔ وہ اپنے لفظوں کی ناقدری شکوہ کر کے ہمیشہ پچھتاتی تھی، اور آج تیر سے نکلا وہ جملہ کہ کہہ کر پچھتائی۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ محبت ہوتی کیسے ہے۔ شادی کے 8 سال بعد بھی تمہارے سر سے شادی کا بھوت نہیں اترا۔ مصطفیٰ طاہر کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ چاہے جانے کی خواہش کسے نہیں ہوتی مصطفیٰ؟ میں نے آپ کو اپنے دل کے سنگھاسن پر بٹھا رکھا ہے۔ ایک بے آواز سسکی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی، لیکن میں اس کا اظہار کر کے بار بار پچھتا رہی تھی۔ بیوی ہوں آپ کی، کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ آپ کہے آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ کیا 8 سالوں میں بھی آپ کے دل میں میری رفاقت، میری ریاضت، محبت کی ایک کومپل تک کھلانے میں ناکام رہی؟ وہ پھر سے اپنے کام میں منہمک ہو چکا تھا۔ اسمارا کا وجود خاکستر کر کے وہ یوں ہی انجان بن جایا کرتا تھا۔ وہ اپنے بے قابو ہوتے ہوئے آنسوؤں پر بند باندھنے میں ناکام ہوئی تو اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ واش روم کے دروازے سے لگ کر کافی دیر رونے کے بعد خود ہی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور منہ دھونے لگی۔ پہلے کی طرح آج بھی اس کے آنسوؤں کو کسی نے صاف نہیں کیا تھا۔ اس کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ وہ 3 بچوں کی ماں تھی، لیکن آج بھی اس کے چہرے پر پڑنے والی نگاہ ٹھہر جاتی۔ وہ خوبصورت تھی اور خوبصورتی سے بے نیاز تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو کیسی ہوتی ہے محبت، جیسی میں ہوں۔ کیا تمہیں مجھ میں محبت نہیں نظر آتی؟ خود کو راغ کر دیا میں نے تمہارے ایک لمحے کے التفات کی منتظر۔ کیا کوئی محبت کی ایسی بھی بے قدری کرتا ہے؟ آنسو پھر سے بے قابو ہونے لگے۔ اسی لمحے واش روم کے دروازے پر دستک ہوئی، پھر مصطفیٰ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اسے بلا رہا تھا۔ آواز میں برہمی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ گھبرا کر باہر آئی۔ کیا ہر وقت سوگ مناتی رہتی ہو؟ کون مر گیا ہے؟ وہ آرام سے اپنے کام میں مگن اس سے پوچھ رہا تھا۔ اسمارا اس کے الفاظ پر دہل سی گئی تھی۔ اس کی ناراضگی کبھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ اب کچن میں بیٹھ کر آنسو بہانے مت لگ جانا۔ وہ اس کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا۔ وہ اس کو بے خبر سمجھ کر اس کو تکتی رہتی تھی۔ وہ اسمارا کی دیوانگی کو بھی قابل اعتبار جاننے سے انکاری رہتا۔ شادی کے 8 سال بعد بھی وہ پہلے دن کی طرح تلخ سا اور سنگ دل تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسمارا کی ذات کی نفی کرتا۔ وہ جانتی تھی کہ مصطفیٰ کا محبت سے اعتبار اٹھ چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اسے مصطفیٰ کی محبت ملے۔ وہ دونوں اتنی دیر تک سفر طے کر کے یہاں پہنچے تھے کہ اسمارا آج اس مندر کے دیوتا سے اس کی خواہش کے برعکس، اس کی کج ادائی کے باوجود، اس کی دلداری، اس کی مسیحائی کی خاطر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بے اعتنائی سے کرارا جواب دے کر اس کی حوصلہ شکنی کرے گا، اپنے دل کی بات کہنے لگی۔ وہ اس کی ہمراہی میں خوش بھی تھی۔ وہ اسے بھی خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی ڈر جاتی کہ کہیں مصطفیٰ اسے چھوڑ نہ دے۔ آج بھی وہ اسی الجھن میں مبتلا تھی۔ مما، ایک لفظ نے اس کے جلتے سلگتے وجود پر مرہم رکھا۔ اس کا 6 سالہ بیٹا معاذ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے کھڑا تھا۔ وہ کچی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ مما، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں۔ اسمارا کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ لپک کر اس کی سمت ہوئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف، اولاد کا سکھ ایک طرف، اسے اپنے اندر ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ چائے جل کر خشک ہو گئی اور تمہیں رونے دھونے سے فرصت نہیں ملی۔ ایسے کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر؟ وہ بری طرح جھنجھلاہٹ کے باوجود قدرے دھیمے لہجے میں بولا۔ اگرچہ کوشش ناکام تھی، لیکن بیٹے کی موجودگی میں وہ صرف یہی کہہ سکا۔ وہ ماس کو چھوڑ کر چولہے پر رکھی ساس پین کی جانب بڑھی۔ اس میں رکھا پانی چائے کے لیے جل کر خشک ہو گیا تھا۔ میں ابھی چائے لاتی ہوں، وہ گھبرا کر بولی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اب، بیٹے کے سنہری بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولا۔ وہ بیٹے کو گود میں اٹھا کر بیٹے سے باتیں کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ تو پہلے ہی اس سے کافی صدیوں کی دوری پر کھڑی تھی، شاید کبھی نہ ختم ہونے والی تھی۔ امارا کا رزلٹ دیکھتے ہی وہ ماں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔
आसिया ने अपने बेटे को मोहब्बत से देखा। मुझे आपसे एक खास बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात करनी है? अभी खदीजा के घर से वापसी पर कर लेना। आसिया अमारा के ग्रेजुएशन करने की खुशी में मुबारकबाद देने के लिए जा रही थी। वो जानती थी कि उसका फर्माबरदार बेटा उनके हुक्म से सरताबी नहीं करेगा। अम्मा जान, बहुत ज़रूरी बात है। जी बोलो बेटा। अम्मा जी, वो मैं अमारा से। वो हिचकिचाया। इतना कहा कि आसिया समझ गई और बेसाख्ता मुस्कुराई। इंशाल्लाह अमारा मेरे बेटे का नसीब ही बनेगी। बहुत पहले मैंने खदीजा और फुरकान से अमारा का हाथ मांग लिया अपने बेटे के लिए। अम्मा जान, क्या वाकई? उसने आसिया का हाथ थाम कर बेचैनी से पूछा। हाँ बेटा। उसे यकीन था कि अमारा भी उसे पसंद करती है। अमारा इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। वो अपने हुस्न से बहुत कुछ कर सकती थी और अमारा ये भी जानती थी कि मुस्तफ़ा उसे पसंद करता है। लेकिन उसे वो शख्स चाहिए था जो उसे दौलत से नवाजे। उसने सोच लिया था कि वो मुस्तफ़ा से तो कभी भी नहीं शादी करेगी, क्योंकि मुस्तफ़ा मामूली सी जॉब करता था और इतने अमीर भी नहीं था। वो आसिया को छोड़कर घर आ गया था। जब वापस लेने गया तो आसिया और खदीजा दोनों दरवाजे पर उसकी मुंतजिर थी। उसने सर झुकाकर प्यार लिया तो वो गले लगाकर रोने लगी। खाला ने उसे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। वो हैरान खड़ा था। सफर बिल्कुल खामोशी में गुजरा था। उसने भी अपनी अम्मा से कुछ ना पूछा। अम्मा जी, ऐसा भी क्या हो गया? आप मुसलसल खामोश हैं। मुस्तफ़ा, मुझे माफ कर दो बेटा। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी। वो नाफरमान बेटी मेरे होनहार बेटे के लायक नहीं है। उसे पैसे की ख्वाहिश है। वो पैसे वाले से शादी करना चाहती है। वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त वलीद है। अम्मा, वो वो ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? आप तो कह रही थी कि आपने बचपन से उसे मांग लिया था मेरे लिए। उसकी आवाज से उसका दुख महसूस हो रहा था। आसिया का वो इकलौता बेटा था। दो बेटियां बड़ी थीं जिनकी शादी कर दी थी। आसिया के शौहर इलियास की वफात हो चुकी थी जब मुस्तफ़ा 10 बरस का था। बड़े सब्र से आसिया ने इनकी परवरिश की थी। उन्होंने मुस्तफ़ा के लिए अपनी भांजी का सोचा था, मगर आज इस लड़की ने साफ मना कर दिया था। आसिया ने मुस्तफ़ा के चेहरे की सख्ती को देखकर उसकी जल्द से जल्द शादी का सोचा। दूसरे दिन खदीजा खाला और फुरकान खालू चले आए। चेहरों से वाज़ेह था कि एक पल के लिए भी इन्हें सुकून नहीं आया होगा। मुस्तफ़ा ने दोनों को अदब से सलाम किया और बाहर चला गया। बाहर डोर बेल पर उंगली रखकर वो भूल गया था। ओहो तौबा, खोल रही हूँ दरवाज़ा। क्या हो गया? वलीद, सब्र करो। उसने खट से दरवाज़ा खोला। सामने मुस्तफ़ा मौजूद था। उसने अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में वलीद को बुलाया था, सारी सूरत हाल से आगाह करने के लिए। वो चौंक गई, फिर दरवाजे से ही मुस्तफ़ा को चलता करना चाहा। अम्मा और अब्बा तो आपके घर गए हुए हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। अमारा एक पल को उसे यूं गुस्से में देखकर घबरा गई और ना चाहते हुए भी उससे अंदर आने का कहा। अंदर कमरे में बैठकर बोली, कीजिए, क्या बात करनी है? क्या मेरी मोहब्बत इतनी आराज़ां थी? वो उससे नजरें मिलाने से गुरेज बरत रही थी। किसके लिए मेरी मोहब्बत से मुनकिर हुई हो? अमारा बोली, मैंने कभी आपसे कहा सुना नहीं और ना ही किसी से वादा किया था। वो बोली तो वो हंस दिया। असमारा के कदम कमरे के बाहर रुक गए। वो अपनी बहन के फैसले के खिलाफ थी। वो अमारा की छोटी बहन थी। चलो मान लिया कि तुमने इकरार नहीं किया, लेकिन दिल के जज्बात को महसूस तो किया था ना। इससे मुकर नहीं सकती तुम। हाँ, पर मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। मुझे दौलत वाली जिंदगी चाहिए जो आप नहीं दे सकते। महीने के चंद हजार कमाकर घर में मोहब्बत का दावा करने वाले बहुत देखे मैंने। ऐसे मर्द औरत को दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकते। मैं मानती हूँ मोहब्बत है तुमसे मुझे, लेकिन तुम गरीब हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। मुस्तफ़ा को मोहब्बत के नाम से कोई उम्मीद नजर आई। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। तुमने वलीद का इंतखाब किया। उसकी दौलत नहीं, उसके बाप की है। हाँ जानती हूँ, वही वलीद जिसने मुझे आपके घर पर देखा था। वो मेरा बेहतरीन इंतखाब है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। और मेरी मजबूरी देखो, मेरा दिल अभी भी तुम्हारी ख्वाहिश कर रहा है। अम्मा अब्बा चाहते हैं कि मेरे इनकार का अजाला हो जाए, इसलिए वो खाला से असमारा और आपकी शादी की बात करने गए हैं। इससे कोई ताल्लुक तो रहेगा। मुस्तफ़ा चुप सा हो गया। मैं हमेशा आपको
एडवाइस करती रही हूँ। आपकी इज्जत मेरे दिल में है, मैं कोई फर्क नहीं आएगा। वो मजीद कुछ कहे बगैर चला गया। उसके जाने के बाद असमारा अंदर आई और कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उसका दिल तोड़ दिया, तुम तो इज्जत के लायक भी नहीं हो। वो इस आवाज को सुनकर रुक गया और सोचा शायद असमारा की बात सुनकर अमारा कुछ सही कह दे। वो मोहब्बत करते हैं मुझसे और तुम जल रही हो। अगर उनकी शादी तुमसे हो भी गई तो वो मुझ खूबसूरत को नहीं भूलेंगे। अगर वलीद की तरह मुस्तफ़ा भी किसी अमीर बाप का बेटा होता ना तो मेरा इंतखाब कभी ना बदलता। वलीद सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है। जिंदगी एक बार मिलती है और मैं इसे फालतू मोहब्बत में गंवाने नहीं दे सकती। वो नखवत से बोली थी। मुस्तफ़ा उसकी और कोई बात सुनने को रुका नहीं। अब अमारा की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। उसे यकीन था कि असमारा भी अपनी बहन की तरह बदतमीजी और बेवफा होगी। मुस्तफ़ा का फैसला उसकी माँ की बीमार होने और इसरार की नज़र हो गया। अम्मा हर सूरत असमारा को ही बहू बनाना चाहती थी। मुस्तफ़ा ने कभी उसे ठीक से देखा तक नहीं था। अमारा की शादी से पहले असमारा और मुस्तफ़ा का निकाह हो गया था। बेहद सादगी से रुखसती हुई थी। जेब खाली हो तो सादगी की डिमांड ही होती है। अमारा के तंज पर मुस्तफ़ा ने उसे देखा। असमारा तो मुश्किल से राजी हुई थी। अच्छा होता कि आप किसी और से शादी कर लेते, वरना अब हर वक्त आपको मेरी याद आएगी जब जब आप असमारा को देखेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। मैं इतना फारिग नहीं कि तुम्हें याद करूं। 2 दिन भी सोग नहीं मनाया मैंने। वो जवाब देकर चला गया। मगर एक बात उसके दिल में रासिख हो चुकी थी कि असमारा भी अमारा जैसी ही होगी। मुस्तफ़ा ने माँ की आंखें मूंदते ही अपना घर फरोख्त कर दिया, दुकानें भी बेच दी, मुलाजमत छोड़कर कारोबार शुरू कर दिया। वो शादी के पहले हफ्ते ही उसे एक छोटे से किराए के फ्लैट में ले आया था। उसके माँ बाप मुस्तफ़ा के इस फैसले के खिलाफ थे। खुद मुस्तफ़ा की बहनें नायाब और रुबाब भी नाखुश थी, लेकिन वो अपने फैसले खुद करता था। वो उसे हर तरह से नज़रअंदाज करता था। ये भी नहीं था कि वो उससे मुकम्मल गाफिल था। उसकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखता था, लेकिन उससे मुखातिब होना पसंद नहीं करता था। वो दोनों 2 कमरों के फ्लैट में अजनबी की तरह रह रहे थे। अमारा अपनी शादी के बाद पहली बार उनके घर आई थी। वो असमारा को इस छोटे से फ्लैट पर देखकर अपनी क्याफा पर अश अश कर उठी। देखो, मुझे तो पहले ही पता था मुस्तफ़ा की बीवी का मुकद्दर यही मुकद्दर होगा। मुस्तफ़ा ने तुम्हें कहाँ ला पटका। अम्मा जिद ना करती तो मैं तुम्हें इस कुएं में ना गिरने देती। मैं तुम्हारी शादी अपने देवर से करवा देती। वो बहुत अमीर है, मेरे खानदान वाले पैसा पानी की तरह बहाते हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुस्तफ़ा ने कौन सा तुम्हें कोई खुशी दी है। तुम तलाक ले लो। असमारा हैरान सी खड़ी उसे देख रही थी। दरवाज़ा खुला और मुस्तफ़ा अंदर आया तो उसका इस्तकबाल अमारा के जहरीले लफ्ज़ों ने किया। अगर तुम्हारी बहन की यही ख्वाहिश है तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। वो जहर हुआ। असमारा पहले ही हैरान और साकिन खड़ी थी। मुस्तफ़ा के इस अल्फाज से उसे बहुत दुख हुआ। बहुत खूब, तुम 8-10 माह में भी इसके दिल में जगह न बना सकी। अमारा मुस्तफ़ा को देखकर अंदर तक खिल उठी। असमारा को अमारा का अंदाज एक आंख न भाया, लेकिन कड़वा सच था। वो मुस्तफ़ा के घर में थी, उसके दिल में नहीं। असमारा घर में पड़े बेजान सामान जितनी अहमियत भी नहीं रखती थी। वो उसे देख तो लेता था, पर उसे उससे कोई मतलब नहीं था। हाँ, जब मौका मिलता तो वो उसे उसकी बहन की वजह से ताना ज़रूर देता था। अमारा, तुम आइंदा मेरे घर मत आना। मैं जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ। मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। तुम्हारी बातें मेरा घर बर्बाद कर देंगी। घर बसा ही कब है जो खराब होगा। देख सकती हूँ मैं, अंधी नहीं हूँ मैं। वो रात के वापस आया तो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। वो देख चुका था। वो दरवाजे के बीच खड़ी थी। अब उसकी सूरत में उसे अमारा नजर नहीं आती थी। आपको कोई हक नहीं कि आप अपनी नाकाम मोहब्बत तले मेरी जात को रौंद दें। असमारा मुस्तफ़ा के करीब आकर फट पड़ी। मुस्तफ़ा ने आंखों से बाजू हटाया। मैं सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश जानना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा की आवाज़ भारी और आंखें सुर्ख हो रही थीं। ये तुम्हारी बहन की ख्वाहिश है। मेरी बहन के आगे भी दुनिया मौजूद है। वो उल्टे कदमों से वापस लौट गई। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लेते हुए अपने बालों में उंगलियां फंसाई।
कुछ देर बाद वो असमारा के पीछे चल पड़ा। वो लड़की मुस्तफ़ा को बेबस कर रही थी। वो बेबस नहीं होना चाहता था। क्या हम जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? मेरी माजरत काबिल कबूल नहीं, या मैं आपने मजबूर होकर कबूल किया है मुझे। वक्त बदलता गया, लेकिन मुस्तफ़ा का रवैया कभी भी दोस्ताना नहीं हुआ था। अब वो बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और उन्होंने एक बंगला ले लिया। अमारा नाराज होकर असमारा के घर आई थी। सुबह जब वो बच्चों के कमरे से बाहर निकली तो अमारा उसे देख रही थी। असमारा हैरान हुई थी। तुम अलग कमरे में रहती हो? वैसे इतनी हैरान क्यों हो रही हो? देखो, मुस्तफ़ा आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। अमारा कुछ कहने लगी थी कि मुस्तफ़ा की आवाज़ आई। वो अमारा को कुछ कहे बगैर अंदर चली गई थी। अमारा कीनातोज नजरों से उसे देखती रही। अब क्या सारा दिन कमरे में बैठने का इरादा है? नाश्ता और चाय पानी का पूछने के बजाय क्या अपनी बहन से घर को जहन्नुम बनाने का तरीका पूछ रही थी। क्या लेंगे आप नाश्ते में? उसने मुलाजिम की तरह पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय वो उसे देखता रहा। तुमने अपनी बहन से पूछा वो यहाँ क्यों आई और उसका क्या कयाम कितना तवील है? क्यों, उसने आपको नहीं बताया? मुझे पता है वो क्यों आई है, लेकिन उसने तुम्हें क्या बताया? उसके ससुराल वाले उसे ताना देते हैं और रवैया अच्छा नहीं है, उसने मुख्तसर से आगाह किया। वलीद भी यही कहता है कि वो उसके साथ खुश नहीं है। वो बदजुबान और बदमिजाज लड़की है। उसे शादी का अंजाम सिर्फ तलाक नजर आता है। उसने हैरत से मुस्तफ़ा को देखा। वो कितनी दिलचस्पी ले रहा था उसके मामले में। उसने पहली बार देखा था उसको इतनी लंबी बात करते हुए। तुम अपनी बहन को समझाओ, वो बात बात पर घर छोड़कर यहाँ ना आ जाया करे। रात मुझे वलीद की कॉल आई। वैसे तो मैं उससे नहीं मिलता, लेकिन वो आज मिलना चाह रहा है। मुस्तफ़ा उसे ये सब क्यों बता रहा था? उसे खुद भी नहीं पता था। तो मिल ले, मैं क्या कह सकती हूँ? वो बेड पर लेटे अपने बेटे के बालों पर हाथ फेर रही थी। मुस्तफ़ा ने उसे आईने में देखा। वलीद से मिलने का क्या फ़ायदा जब तुम्हारी बहन साहिबा ही पता नहीं क्या चाहती हैं। मैं बात करूंगी अमारा से। उसने झुककर नींद से जागे अपने बेटे के माथे को चूमा। नाश्ता मिलेगा या नहीं? मुस्तफ़ा ने परफ्यूम स्प्रे करते हुए पूछा। मोहब्बत, क्या मेरी मोहब्बत के बाद भी आपके दिल में अमारा की मोहब्बत के लिए गुंजाइश होगी? क्या वो नासा मोहब्बत आज भी आपके दिल को बेकल करती होगी? क्या अमारा को देखकर उसे ना पाने की कसक ने आपके दिल में तलातुम मचाया होगा? क्या आज भी आप अंदर वो अलाव दहकता है जिसने मेरे दिल में आग लगाई हुई है? ना जाने कितने ही सवाल उसके दिल में थे, मगर वो खामोशी से उठकर किचन में खड़ी थी। मुस्तफ़ा ने कभी मोहब्बत का मान नहीं दिया था। मुस्तफ़ा के दिल की सल्तनत पर आज भी अमारा है। वो इस तरह की कोई सोचों से लड़ रही थी। अमारा के पास वलीद को छोड़ने की बहुत सी वजूहात थी। उसने असमारा को तकरीबन अपने हक में कर लिया था। कायल, अगर अम्मी बाबा का 4 साल पहले रोड एक्सीडेंट में इंतकाल ना हुआ होता तो आज इनका वजूद अमारा के लिए ढाल बन जाता। यहाँ तो खुद मुस्तफ़ा अमारा से पुराने खाते खोले बैठे हैं। कौन उसके हक की बात वलीद और उसके खानदान वालों से करेगा? असमारा बहन को लेकर फिक्रमंद थी। शाम ढले मुस्तफ़ा बच्चों को करीबी पार्क ले जाने लगे तो अमारा भी जबरदस्ती उनकी हमरा चली गई। कुछ देर कबल वो अमारा के लिए परेशान थी, लेकिन अमारा को नेक्सिक से तैयार मुस्तफ़ा और बच्चों की हमरा जाते देखकर वो अजीब बेसुकूनी बल्कि खुद को कमज़ोर भी महसूस कर रही थी। दिल में डर था। मुस्तफ़ा अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए लाख बदगुमान सही, मगर राख में दबी चिंगारी अब भी बाकी थी। उसका दिल किसी काम किसी चीज में नहीं लग रहा था। काश मैं भी साथ चली जाती। उसने यूं हाथ मसले जैसे
اس کی گرہستی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسی وقت ملازمہ نے کسی کی آمد کی خبر بتائی۔ وہ ڈرائنگ روم میں گئی تو حیران رہ گئی۔ ولید آیا تھا ملنے۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ اسمارا بھی بیٹھ گئی۔ مجھے پتا چلا تھا ولید بھائی ہمارا بہت نادان ہے۔ آپ اسے سمجھائیں گے اور معاملات کو سنبھال لیں گے۔ اب معاملات سنبھل نہیں سکتے۔ میں یہ معاملہ یہیں ختم کرنے آیا ہوں۔ باہر سے آتی آواز بتا رہی تھی کہ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ اسمارا نے عجیب بے بسی سے ولید کو دیکھا۔ آپ بہت جلد بازی کر رہے ہیں۔ آپ کو سوچ لینا چاہیے، رشتے اس طرح نہیں چھوڑے جاتے۔ اس نے سمجھایا۔ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا۔ وہ دونوں بچوں کی ہمراہ گھر آ چکے تھے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ مصطفیٰ اونچی آواز میں بولا۔ تمہاری امانت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لفافہ اس کی طرف اچھالا۔ دیکھ لو، تمہارا طلاق نامہ اور تمہارا حق مہر، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ باقی تم آتے وقت لے آئی تھی ساتھ۔ لفافہ دے کر وہ 1 منٹ کے لیے نہیں رکا، چلا گیا۔ امارا لفافے میں پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ چلو، اچھا ہوا جان چھوٹی۔ اس نے دونوں چیزوں کو دیکھ کر اطمینان سے کہا۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے سب سے دشمنی مول لی تھی، آج وہ اس سے تعلق ٹوٹ جانے پر بہت خوش تھی۔ اسمارا حیران نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ اسمارا نے اپنا دل ٹٹولا اور حیران ہو اٹھی۔ وہ مصطفیٰ کی جدائی کو لے کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا امارا ولید سے محبت نہیں کرتی؟ وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ اسمارا سوچنے لگی۔ وہ دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ڈرائنگ روم میں کھڑی تھیں۔ تم اب کیا کرو گی امارا؟ زندگی کو انجوائے، اور کیا؟ ویسے بھی مصطفیٰ تو ہے ہی۔ وہ بے شرمی سے اسمارا کو کہہ کر سامنے مصطفیٰ کا کہہ رہی تھی۔ ہونا تو یہ تھا کہ امارا طلاق کے بعد آرام سے گھر پر رہتی، کم سے کم عدت تو پوری کرتی، مگر اس کے برعکس اس نے اپنے اتوار و قطن تبدیل نہیں کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ سج سنور کر مصطفیٰ کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ اس کی ہنسی اور کہکوں سے پورے گھر گونجنے لگا تھا۔ اسمارا کو یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار کب ہنسی ہو۔ ہاں، اس کے بچے ضرور اس کو سکون دیتے تھے۔ وہ امارا کو حسرت سے دیکھتی رہتی تھی۔ تم کیسے ایسے روکھی محبت سے زندگی بسر کر رہی ہو؟ مجھے دیکھو، جب ولید کی محبت مجھے کھوکھلا کرنے لگی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ امارا، میرا اور مصطفیٰ کا تعلق اتنا کمزور نہیں۔ یوں بھی محبت سب کچھ نہیں ہوتی، وفاداری اور خدمت گزاری بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر تم اس کے بچوں کی ماں ہو تو یہ محبت کی گارنٹی نہیں ہے، یہ سمجھوتا ہے میری جان۔ بہت سے ایسے مرد ایسے سمجھوتے کرتے ہیں، پھر اپنی 2-3 بچوں یا 5-5 بچوں کو چھوڑ کر اور شادی کر لیتے ہیں، اپنے پیار کو بہلاتے ہیں۔ امارا یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگی تو اسمارا کو ناگواری کا احساس ہوا۔ تو کیا ہوا؟ دوسری تیسری شادی کرنے کا مذہب بھی اجازت دیتا ہے۔ اسمارا نے اپنی ذات سے ہٹ کر عام سی بات کہی۔ کبھی کبھی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ امارا کی آنکھوں میں کوئی پیغام تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب تمہاری طرح ہوتے ہیں؟ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسمارا بھی امارا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی کہ امارا کا جاندار کہکا گونجا۔ ناول کا نام محبتیں پا کر ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگرچہ ناول چھوٹا ہے لیکن یقیناً پسند آئے گا۔ واقعی کچھ لوگوں کے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھو، مصطفیٰ آج تک اپنے دل سے میری باتیں نہیں نکال پایا۔ مجھے تو لگتا مصطفیٰ آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا مصطفیٰ میرے شوہر ہیں، ہمارے 3 بچے ہیں، اور اللہ کے لیے تم میرا گھر برباد مت کرو۔ بہتر ہوگا اب تم اپنا سامان باندھ لو۔
اور نکلو یہاں سے۔ وہ بے حس اور سنگ دل نہیں تھی، لیکن آج اسے یہ کہنا تھا، تم جانتی ہو میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں، پھر میں تمہاری بہن ہوں، تم کیسے جانے کا کہہ سکتی ہو؟ جب مصطفیٰ کو بھی میرے یہاں رہنے سے کوئی اعتراض نہیں، اگر مجھے وہ خود کہے تو میں چلی جاؤں گی، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ ہمارا بد لحاظی اور بے باکی کا مظاہرہ کر کے اٹھی اور پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ہمارا اسمارا کی سگی بہن تھی، وہ مصطفیٰ کو اپنی طرف مائل کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ اس کی اپنی بہن اتنی پستی میں کیسے گر سکتی ہے؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہمارا، تم میری بڑی بہن ہو، میں تمہاری شکایت کس سے کروں؟ وہ آزردہ ہو گئی۔ ماس کے اسکول میں رزلٹ تھا، مصطفیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ماس کے اسکول چلی گئی۔ چھوٹے دونوں بیٹے گھر پر تھے، اور گھر پر تو امارا بھی تھی، جس کے انداز و اطوار کی گراوٹ دیکھ کر کڑنے لگی تھی، جس کی ذہنی پستی نے اسمارا کو دو چار کر رکھا تھا۔ اگر مصطفیٰ اور اس کا رشتہ ریت کی مانند اس کے ہاتھوں سے پھسل بھی جاتا، اسے اس قدر غم نہ ہوتا، مگر اس مقام پر آ کر مصطفیٰ نے کوئی قدم اٹھایا تو وہ تا عمر کسی پر اعتبار نہیں کر سکے گی۔ کیا مصطفیٰ کو امارا کے رنگ ڈھنگ نظر نہیں آتے؟ کیا وہ بھی امارا کی طرح خود غرض اور بے حس بن جائیں گے؟ کیا ہمارا رشتہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے؟ اگر مصطفیٰ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں اپنے بچے بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ دو خود غرض لوگوں کے زیر سایہ انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کل رات یہی سوچتی رہی تھی، پھر صبح کے قریب یاد آیا کہ اماں ابا کا گھر تو کب کا فروخت ہو گیا ہے۔ ٹھیکوں کے چھوٹے الزام میں دو تین مقدمے چل رہے تھے، اور ابا نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اچھے سے اچھا وکیل ہائر کیا ہوا تھا، لیکن وہ بھی مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچتے رہے، ذہن میں خیالات کی یلغار ہو رہی تھی۔ واپسی پر اس کے قدم اپنے کمرے کے دروازے پر ساکت رہ گئے۔ معاذ لان میں اپنے بھائیوں کے پاس رک گیا تھا۔ مصطفیٰ، میں نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، میں اتنے سال اپنے فیصلے پر بری طرح پچھتاتی رہی ہوں، آخر آپ کیوں اتنے سنگ دل ہیں؟ میں آج بھی وہی امارا ہوں، آپ نے مجھ سے محبت کی تھی، اس سے نہیں جو آپ کی بیوی ہے۔ آپ کو مجبور کیا گیا تھا، مگر اب تو مجبوری نہیں ہے، اب تو میری آزمائشیں بھی ختم ہونی چاہیے۔ وہ اد کھلے دروازے کے عقب میں امارا کی بے خوف بے باک آواز سن سکتی تھی۔ اس کے گلے سے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا، اس سے سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ امارا، تم ہر گزرتے دن کے ساتھ میری نظر میں اپنا وقار اور میرے دل سے اپنی عزت کو گواتی چلی گئی۔ محبت تو اس لمحے ہی ختم ہو گئی تھی جب تم نے مجھ کو چھوڑ کر عیش و عشرت کی زندگی چنی تھی۔ اب میرے لیے تم صرف میری بیوی کی بہن ہو اور کچھ نہیں۔ مصطفیٰ امارا کو اسمارا کی حیثیت باور کرا رہا تھا۔ اسمارا بڑی مشکل سے دیوار کو تھام کر باہر کھڑی تھی۔ اسے خود سے شرم آئی۔ میں نہیں مانتی، آپ آج بھی مجھے چاہتے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کے دل سے میری محبت ختم ہو گئی ہے۔ محبت کی جوت تو ایک بار روشن ہو کر دوسروں کے دلوں کو منور کر دیتی ہے۔ محبت کرنے والا اسے منور کرنے اور بجھانے پہ قدرت نہیں رکھتا، یہ تو خود بخود روشن ہوتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے مگر محبت نہیں مرتی۔ آپ کے دل میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ تم آج بھی مجھ سے آگے نہیں نکل سکی، جبکہ میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ تو تم اور تمہارے نام نہاد محبت، جس کا کبھی میں نے دعویٰ کیا تھا، اب دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ریلی، میں تو بھول بھی چکا ہوں۔ ایک پیاری سی بیوی ہے مجھے ملی جس نے میرے مزاج کا ہر موسم جھیلا۔ میں اتنا کمزور تھا کہ اسے تمہاری بہن ہونے کی سزا دیتا رہا۔ دیکھو، میری مجبوری میں اسے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ تمہاری بہن ہونے کی وجہ سے اسمارا کی آنکھوں سے
आंसू निकलने लगे। मुस्तफ़ा, आप उसे तलाक दे दें। यकीन करें, मुझसे शादी के बाद आप उसे बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। वो लजाजत से बोली। अब प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये हरकतें मुलाजमों के सामने शर्मिंदा करती हैं। अस्मारा की गैर मौजूदगी में तुम्हारा मेरे कमरे में आना, तुम सिर्फ अस्मारा की बहन हो, वरना तुम जैसी औरत से मुखातिब होना पसंद नहीं करता मैं। मुस्तफ़ा का लहजा जहर खान था। हाँ, कई बार अस्मारा की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हर बार आपने मुझे धुतकारा, मगर ये आप और मैं बात जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ बुलाते थे मुझे, फिर अमारा। मुस्तफ़ा की आवाज़ शेर की चंघाड़ जैसी थी। उसकी जू मैनी बात पोशीदा धमकी थी। अस्मारा के बाहर बुरी तरह आसान खता हो गए। अस्मारा मेरी बहन है, वो मेरा यकीन करेगी। वो जानती है कि आप आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये भी करके देख लो। जितनी मोहब्बत अस्मारा को मुझसे है, मुझे यकीन है वो हर इल्ज़ाम पे एतबार कर लेगी, मगर मेरे किरदार पे लगने वाले इल्ज़ाम पर कभी यकीन नहीं करेगी। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसी पाक किरदार बीवी मिली। उसने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश से बचा लिया। हमारा मुस्तफ़ा के बाद उसकी बीवी पर कीचड़ उछालने लगी थी। अस्मारा का अपने पैरों पर खड़े रहना दुश्वार हो गया। उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के बजाय उसे बाजुओं से पकड़कर बाहर निकाल दिया। घटिया जहन की औरत, तुम मेरे पाक मुकद्दस घर की छत पर नहीं रह सकती। वो अस्मारा को देखकर ठटक गया। हमारा अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाई। वो गिर गई और अस्मारा के गले लग के रोने लगी। अस्मारा, मैंने कहा था ना कि मुस्तफ़ा आज भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ये मुझे तुम्हारे पीछे से बहका रहे थे। मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मुझे मारना शुरू कर दिया इन्होंने। वो मजीद भी कुछ कहती, अस्मारा की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने खुद से चिपटी खूबसूरत बला को खुद से दूर किया और उसके थप्पड़ मारा। खबरदार, जो तुमने एक और लफ्ज कहा तो अपना सामान लो और निकल जाओ यहां से। मैं अपने घर में तुम्हें अगले लम्हे ना देखूं। वो गुर्राई। अस्मारा, तुम्हें मेरा यकीन नहीं है। मुस्तफ़ा एक करप्ट शौहर है। मुस्तफ़ा को मैं बिल्कुल इसी तरह जानती हूँ जैसे तुम अपने आप को, शायद इससे भी ज्यादा। अब तुम अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूंगी। हाँ हाँ, जा रही हूँ, मगर याद रखना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। वो आज भी मुझे चाहता है। वो जोर जोर से चीखती चली गई। अस्मारा के दिल पर उदासी छा गई। उसे अपनी बहन का ये रूप बहुत जख्मी कर गया था। मुस्तफ़ा ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में चला गया। वो चेहरा हाथों में छुपाए सिसक रही थी। मुस्तफ़ा दरवाजे पर ही खड़ा कुछ देर उसे बेबसी से देखता रहा, फिर उसके करीब चला आया। वो सोफे पर बैठी हुई थी। मुस्तफ़ा कालीन पर उसके पास आकर बैठ गया। नरमी से उसकी कलाइयाँ पकड़कर चेहरे से उसके हाथ हटाए। बस करो, कितना रोगी, कितने कीमती मोती उसके लिए बहा रही हो जिसे इनकी कदर नहीं। वो उसकी आंखों को साफ करते हुए बोला। मुस्तफ़ा, वो मेरी बहन है। उसका जुमला मुस्तफ़ा के दिल को दुलख्त कर गया। तुम उस पर यकीन ना करके पछता रही हो। वो फिर बदगुमान होने लगी। आप हमेशा मुझसे बदगुमान रहते हो। मुझे अजियत देकर आपको शायद खुशी मिलती है। मेरे हिस्से में हमेशा आपकी बदगुमानी और बेएतबारी आई है। वो बरहमी से उसके मजबूत पुरहिद्दत हाथ झटक कर उसकी तरफ देखे बगैर अपने चेहरे से आंसू साफ करते हुए खड़ी हुई। वो बहन है मेरी, ये हकीकत नहीं बदल सकते। उसके तर्ज अमल ने मुझे सिर्फ तकलीफ में मुब्तला नहीं किया, अजहद शर्मिंदा भी किया है। मैं ताउम्र उसके लिए शर्मिंदा रहूंगी। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। उसके अल्फाज नोके ज़बां पे आने से बेशतर दम तोड़ गए। वो हिचकियों के साथ रोने लगी। मुस्तफ़ा ने फिर से उसका हाथ थाम लिया और बोला, पागल, चांद पे कीचड़ उछालने से
चांद का तो कुछ नहीं बिगड़ता, अलबत्ता कीचड़ उछालने वाले के अपने हाथ गंदे होते हैं, और अमारा जैसे लोग सिर्फ तुम्हें देख सकते हैं। उसने नरमी से अस्मारा को समेटा। आपको मुझ पे एतबार है ना? उसके इस अफसार पे मुस्तफ़ा मुस्कुराया। मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। हम एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे का आईना, और मेरा आईना बिल्कुल शिफाफ है। मुस्तफ़ा ने उसकी आंखों की हैरानी को भरपूर मुस्कुराहट के साथ देखा। अस्मारा, मैं अब जान चुका हूँ कि तुम अमारा की बहन हो, मगर अमारा नहीं, और मेरी खुशकिस्मती है। उसके लहजे में मोहब्बत की शिद्दतें थीं। और अगर आज वो सब ना सुन लेती तो आप आज भी ये सब नहीं कहते, अमारा की हरकतें को पोशीदा रखते, मेरी मोहब्बत का एतराफ़ भी ना करते, खुद पर सख्ती का होल चढ़ाए रखते। शायद, हाँ, अमारा के मुतल्लिक तुम्हें बताकर परेशान ना करता। मुझे यकीन था वो जल्दी मायूस होकर चली जाएगी। मोहब्बत तो उसे मुझसे थी नहीं, शायद कोई मतलब था। अमारा को हमेशा गलत कामों से अस्मारा ने रोका था। उसके बरखिलाफ वो हमेशा माँ और बहन के मुकाबले में माँ बाप की हमायत करती और इन्हें सराहती थी। अब्बा समझदार हैं, घर के हालात और हमारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। अस्मारा ने नागवारी से अमारा को एक बार टोका था। कौन सी मेहनत? अब्बा ठेकेदार हैं, और तुम्हें पता है इस वक्त अब्बा जो हराम कमा रहे हैं, उस पुल की तामीर में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है। इस सब चीज़ों का हिसाब हमें एक ना एक दिन देना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो, कल की कल देखी जाएगी। अभी हिसाब किताब का वक्त बहुत दूर है। ये क्या हमारी उम्रें हैं जो हम ये सब सोच रहे हैं? अमारा की बातें उसे रूह फना कर देती थीं। और बहुत नाशुक्री हो, वो खुश रहती थी अब, लेकिन कभी कभी अमारा का ख्याल उसे बेचैन कर देता था। उन्होंने अमारा के मुतल्लिक जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि वो कहाँ है। उस रोज़ बहुत अरसे बाद अस्मारा और मुस्तफ़ा की मुलाकात वलीद से हुई थी। मुलाकात सरे राह हुई थी। मुस्तफ़ा और अस्मारा उससे मुखातिब हुए बगैर गुजर जाना चाहते थे, लेकिन वलीद इन दोनों को देखकर रुक गया था। उसकी आंखों में अजीब तहीर उभरा था। तुमने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा? वो मुस्तफ़ा से सवाल करते हुए उलझा था। व्हाट नॉनसेंस! दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं क्यों छोड़ूंगा अपनी बीवी को? क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं? वो तीनों मॉल की पार्किंग में खड़े थे। मैं तुमसे पहले भी बात करना चाहता था। मैंने तुमसे कहा भी था, मगर तुम्हारी बात ने मुझे बगैर बात किए फैसला करने पे मजबूर कर दिया था। वलीद करीबी रेस्टोरेंट में इन्हें ले आया था। इन सब बातों का मतलब? मुस्तफ़ा ने नापसंदगी से पूछा। अमारा से शादी का फैसला मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अमारा से शादी की और अपना एक अच्छा दोस्त भी गवा दिया था। अमारा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ना तुम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हो, बल्कि वो तुमसे मंसूब भी है। सच कहूँ तो मेरे अंदर रकाबत का जज्बा पैदा हो गया था। मैंने भी तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दी थी। उसके असल जौहर तो शादी के बाद मुझ पे खुले। पहले तो उसके हुस्न और अदाओं से आगे उसके किसी वस्फ पर मेरी नज़र ही जाती थी कि उसका रवैया मेरी फैमिली के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। वो बेहद मगरूर थी, मगर मैं उसे भी हुस्न की अदा समझ रहा था और उसकी हर बात बर्दाश्त की। वो अपनी ज़ुबान से मुझे दिन में कई बार बताती थी कि तुम उससे मोहब्बत करते थे, और तुम्हारी मोहब्बत की शिद्दत मेरी मोहब्बत से ज़्यादा थी। मैं सब कुछ बर्दाश्त करता। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक़्त हुई जब उसने कहा कि वो शादी के चंद सालों तक आज़ाद रहना चाहती है। मैं बच्चों का ख़्याल दिल से निकाल दूँ, अगरचे मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं खामोश हो गया। मेरी बहन, मेरी माँ मुझसे सब नाराज़ थे। फिर बाद में वो खुद मेरी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो गए। वो सब अपनी नाराज़गी ख़त्म कर चुके थे। शादी के 5 साल बाद जब बच्चों की ख़्वाहिश का इज़हार किया तो एक भयानक इंकशाफ़ हुआ। मैं बाप नहीं बन सकता। मुस्तफ़ा, मैं पूरे 3 साल अजियत का शिकार रहा, और फिर एक दिन उस डॉक्टर और अमारा की बातें सुन ली मैंने कि मैं बाप बन सकता हूँ। डॉक्टर और अमारा ने मिलकर झूठ बोला है मुझसे। सोचो, झूठ मेरे खिलाफ था और पैसे भी मेरे थे, इस्तेमाल हो रहे थे।
डॉक्टर ने जाली रिपोर्ट बनाई थी। अगर अमारा मुझे धोखा ना देती तो यकीन करो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। वो हकीकत खुल जाने के बाद भी मेरी आंखों में देखकर बोली थी कि उसने मेरा इंतखाब सिर्फ दौलत के लिए किया है, वरना वो शायद तुमसे मोहब्बत करती थी। वो चाहती थी मैं उसे तलाक दे दूं। मैंने उसे तलाक देने से इनकार कर दिया था। मुझे तुम्हारे घर और असमारा की फिक्र थी, इसलिए मुझे इतने साल बाद अंदाजा हुआ था कि अमारा एक चालबाज लड़की है। वो मेरा घर छोड़कर चली गई थी और उसने बताया था कि वो तुम्हारे घर में है। मैंने तुम्हें उसके कारनामे बताने के लिए कॉल की, पर तुमने इनकार कर दिया। बात करने से मुझे लगा शायद तुम भी अमारा की वापसी के मुंतजिर हो, इसलिए मैंने अमारा को तलाक दे दी। उसने बताया तुम दोनों का ताल्लुक हर हद पार कर चुका है। जिस दिन तुम्हारी बीवी बच्चे कहीं गए हुए थे और तुम दोनों घर पर थे, वलीद का चेहरा बताते हुए सुर्ख हो गया था। मेरे बार बार इनकार करने के बाद भी उसने मुझे तलाक का कहा और ऐसी ऐसी बातें कहीं कि मैं मजबूर हो गया तलाक देने के लिए। वो हमारी जिंदगी में कहीं नहीं थी। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, मुस्तफ़ा ने कहा। जब असमारा मेरी जिंदगी में आई थी तभी मैं अमारा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, पर मैं असमारा से नफरत करने लग गया था। लेकिन अब मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूँ असमारा से। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मोहब्बतों का एतबार सिखाया। असमारा जैसी बावफा बीवी दी, और अब तुम भी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लो दोबारा से। मुस्तफ़ा ने अपने पुराने दोस्त को मशवरा दिया। वलीद बेदिली से मुस्कुराया। मम्मी ने एक लड़की पसंद की है, कोशिश कर रहा हूँ मेरे, लेकिन सच बताओ तो अब इस रिश्ते पर एतबार करने से डर लगता है। अभी कुछ दिन पहले असमारा ने अमारा को देखा था। वो एक 55 साला बुढ़े के साथ थी। वो इतनी मुतमईन थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसे ऐसे रहने नहीं दे सकती किसी अरे गैरे के साथ। कल ही उसकी एक सहेली ने असमारा को फोन करके कहा कि इसे रोक लो, वो जिस रास्ते पर चल रही है वहां सिर्फ झाड़ियां हैं, उसका नसीब। कुछ भी हो, असमारा ने ये सब अमारा को नहीं बताया था। वलीद बस इतना कह के उठ गया और घर आकर बस रोती रही। उसकी दोनों नंदें आई हुई थीं, लेकिन वो अपने कमरे में ही रही, बाहर नहीं आई। मुस्तफा ने सबको कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कमरे में आया तो असमारा छत को घूर रही थी। वो उसे खुश रखना चाहता था हर तरह से, लेकिन इस बात से बाखबर था वो अमारा के बारे में कुछ और भी जानती है। मुस्तफ़ा कहने लगा, असमारा अब बस कर दो, मैं अमारा का जिक्र नहीं सुनना चाहता। मैं अपने और बच्चों के उम्रे की अदायगी का प्रोग्राम बनाया है। मुस्तफ़ा अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चले जाएंगे पहले हमारी बेटी इस दुनिया में आ जाए। आपको कैसे पता कि बेटी होगी? बेटा भी हो सकता है। ये खुशखबरी उस दिन ही मिली थी जब अमारा घर से गई थी। मुझे यकीन है कि बेटी होगी। अल्लाह ने हमेशा मेरी दुआ सुनी। लोग बेटियों की दुआ करते हैं और आप बेटी की। अगर हमारी 3 बेटियां होती तो क्या आप खुश होते? हाँ, क्यों नहीं? आजमा कर देख लो। अगर 4 बेटियां होंगी अब भी, तो मैं फिर भी 5वीं बेटी पर भी खुश होऊंगा। असमारा का चेहरा सुर्ख हो गया। बस करें, 4 बच्चे ही बहुत हैं, 5 बेटियां। वह सुर्ख चेहरे के साथ कानों को हाथ लगाते हुए बोली। मुस्तफा जोर से हंसने लगा। मुझे उम्मीद है हमारी एक प्यारी सी बेटी होगी, तुम्हारे जैसी, जो मेरा सर फखर से बुलंद कर दे। तुम मेरे बच्चों को अपने जैसा बनाओगी। सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों। एक नेक औरत ही अल्लाह का इनाम नहीं होती, एक अच्छा शौहर भी औरत के लिए अल्लाह ताला का इनाम होता है। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? मुस्तफ़ा ने हैरत से पूछा तो असमारा मुस्कुरा दी। नहीं तो? एक शिकायत तो थी तुम्हें मुझसे असमारा। मुस्तफ़ा शरारत से बोला। क्या? यही कि मैं 2 बोल मोहब्बत के नहीं बोलता। असमारा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। शिकायत थी मगर अब नहीं है। मेरे लिए ये काफ़ी है कि आप फ़कत मेरे हैं। जो शख्स किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता, उसके दिल और घर पर मलका की तरह राज करती हूँ। मैं खुश हूँ मुस्तफ़ा, बेइंतहा खुश। कोई अगर तुम्हारे इन लफ्ज़ों को सुन ले तो यकीन ना करे कि तुम मेरी बीवी हो। लगती तुम पहले की तरह खूबसूरत हो, पर
ہماری شادی پرانی ہو چکی ہے، ہمارے 3 پیارے پیارے بچے ہیں اور ایک گڑیا کے منتظر ہیں۔ وہ شرارت سے بولا، تمہارے اظہار نے مجھے محبت پر اعتبار کرنا سکھایا، تمہاری حیا نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا، تمہاری محبت نے مجھے بہت پہلے لوٹ لیا تھا۔ وہ شوخی سے بولا، اسمارا، اب چاہے ہماری شادی کتنی ہی کیوں نہ پرانی ہو، ہم اپنی محبت کو پھیکا نہیں پڑنے دیں گے۔ ہماری محبت کا رنگ بہت پکا ہے، کبھی پھیکا نہیں پڑ سکتا، کیونکہ محبتیں اعتبار پا کر پروان چڑھتی ہیں۔ مصطفیٰ کو یقین ہو گیا تھا کہ محبتیں اعتبار پا کر زندگی کو حسین بنا دیتی ہیں۔